IRC के प्रेसिडेंट प्रोफेसर मनोरंजन परिडा जी, श्री विजय कुमार राजावत जी, श्री डी सारंगी जी, सेक्रेटरी जनरल श्री राहुल गुप्ता जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉर वर्क्स ओडिशा श्री संजय कुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी भाई और बहनों, My warm welcome to all IRC members, engineers, researchers, scholars, contractors, consultants and international delegates gathered here in Bhubaneswar for the 84th annual session of Indian Road Congress. मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का यह आयोजन बहुत विशेष है क्योंकि 3,500 से ज़्यादा डेलीगेट यहाँ एक साथ इकट्ठा हुए हैं। दिस इज द इंडियाज बिगेस्ट रोड इंजीनियरिंग नॉलेज प्लेटफॉर्म। ये एक नॉलेज प्लेटफॉर्म है रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिगार्डिंग रोड कंस्ट्रक्शन, रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ टनेज, ब्रिजेस। This is the appropriate time for all of us that we need to upgrade the technology and innovation research in this sector. I am always telling to the people two important philosophies. One is innovations, entrepreneurship, science, technology, research key and successful practices. We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. India is the fastest growing economy in the world. The dream of our Prime Minister to make India as the third largest economy in the world. Our mission is to make India Vishwa Guru. And for that reason we need good infrastructure, world standard infrastructure. The water, power, transport and communication. And this is very important, that what type of technology we are going to use for making this road, bridges and tunnel. It should be cost effective. Quality point of view is very important. It should be 100% perfect. At the same time, we need to plan in a way by which we have to reduce the construction cost. So this is the knowledge platform, and where your discussions, your seminars, your research papers, going to inspire and motivate the people of this country, but with the engineers of this country, to get new futuristic vision for development of our country. IRC is the soul of India's road engineering. We need ownership, serious approach, commitment for quality and the transparency and the corruption-free system. At the same time, we need to protect our ecology and environment. The lot of waste material which are available, where we need to plan the policy by which we can use the waste material. I always remember the second important philosophy is that no material is waste and no person is waste. It is depending upon the appropriate vision of the leadership, appropriate technology, where we can convert waste into wealth. पिछले 90 सालों से IRC कोड्स, गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स और डिजाइन प्रैक्टिसेस तैयार कर रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जरूर एक बार देख लीजिए कि ये सब बातें जो आप कर रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और पैरामीटर के कितने बराबर हैं, कितने पीछे और कितने आगे हैं। हम हिंदुस्तान को विश्व में आगे ले जाना चाहते हैं। नए नई प्रैक्टिसेस, नए नए सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स, इसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और इसलिए कोड्स, गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स और डिज़ाइन प्रैक्टिसेस को आप इनकरेज करिए। आप में से बहुत से लोग सरकार में काम करते हैं और सरकार में जब नए प्रयोग किए जाते हैं और प्रयोग अगर फेल होता है तो तुरंत वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई करो।
मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा कि नया काम करने के लिए प्रयोग करने पड़ेंगे, और प्रयोग जब करेंगे तो कुछ यशस्वी भी होंगे और कुछ नहीं भी होंगे। If the mistakes are bona fide, forgive them. If the mistakes are nullified, then you are free that you can take action against them. पर अगर आप नए नए इनिशिएटिव को इनकरेज नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, और नीचे वालों को यही कहते रहेंगे कि जैसा चल रहा वैसे चलाते रहो, तो चेंजेस कैसे आएंगे, बदल कैसे आएंगे, वर्ल्ड की सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हम कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस सेशन में आप जरूर इसके ऊपर विचार करिए। हिंदुस्तान का हमारा जो सड़क नेटवर्क है अब वर्ल्ड में नंबर 1 की तरफ जा रहा है, और मैं ये चाहता हूँ, इसके लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जहाँ रोड डेवलप होते हैं वहाँ ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री आती है। जहाँ ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है वहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है, और जहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है वहाँ रोजगार निर्माण होता है, और जहाँ रोजगार निर्माण होता है वहाँ गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर होती है। हम हिंदुस्तान को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना चाहते हैं। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना चाहते हैं। हमारे देश को आर्थिक दृष्टि से प्रगति और विकास की विजन के साथ फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट को आत्मसात करके हम हमारे देश को दुनिया की आर्थिक ताकत बनाना चाहते हैं। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिसर्च, इनोवेशन एंड फील्ड एक्सपीरियंस, इसको आप एक दूसरे से शेयर करिए। IRC का बहुत बार मैं IRC के अध्यक्ष को और उनके पदाधिकारियों को मैं बहुत बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि IRC को फुल टाइम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक्सटेब्लिश करिए। मैं भारत सरकार की ओर से आपको मदद करूँगा, राज्य सरकार भी मदद करेंगे। कांस्टेंट फुल टाइम रिसर्च करिए। रिटायर्ड होने के बाद जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनका गाइडेंस लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में हम हमारे इस क्षेत्र में क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ला सकते हैं। मेरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने सड़क निर्माण में ऐतिहासिक प्रगति की है। Our ministry has secured the highest ever budgetary allocation of ₹2,87,000 crore। पैसे की कोई कमी नहीं है। हम लोग अगर हमारे रोड को मॉनिटाइज करेंगे तो हमारे पास 15 लाख करोड़ रुपए पड़े हैं। प्रॉब्लम पैसे का नहीं है, रिसोर्सेज का नहीं है, प्रॉब्लम एक्सपेंडिचर का है, खर्चा करने का। और पैसा खर्चा करना है तो इसके लिए पॉजिटिविटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए और फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चाहिए। मैंने हमारे एक अधिकारी को मजाक में कहा था कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो मैंने कहा आपका तो आपके पत्नी पर तो प्रेम है ही, और उससे भी ज़्यादा फाइल पर ज़्यादा प्रेम है। एक बार आती है तो आपके यहाँ से निकलती नहीं। जल्दी जल्दी निर्णय करिए, जो करना है वो करिए, पर निर्णय करिए। मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं बात करता हूँ, ये लैंग्वेज काम की नहीं है। मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। आई लाइक ऑनेस्ट पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। फिर अगर कोई लोग गलत निर्णय भी करते होंगे तो भी मुझे अच्छे लगते हैं, और निर्णय करने वाले ईमानदार लोगों से कभी कभी दिक्कत ही होती कि गाड़ी आगे नहीं जाती। ईमानदारी भी होनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश को हमको आगे लेके जाना है। और इसलिए आज मुझे खुशी है कि हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, बड़े बड़े, हमने कभी कल्पना नहीं की थी।
1995 में मुंबई में महाराष्ट्र में मंत्री था, तब पहली बार मुझे देश का द्रुतगति महामार्ग बनाने का सौभाग्य मिला मुंबई और पुणे के बीच में। तब 55 फ्लाईओवर्स मुंबई में बनाए और समुद्र में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। पैसे हमारे पास नहीं थे, 5 करोड़ रुपए थे। तो लोग कहते थे कि इतने बड़े प्रोग्राम आपने तय किए, पैसे कहाँ से आएंगे, आपके पास क्या है? तो मैंने इसका जवाब देना बहुत कठिन था। तो मैंने इतना ही कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, और एक बात जरूर है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल है, इच्छा शक्ति है। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, सब कमेटी, रिसर्च ग्रुप एंड स्टडी ग्रुप। कमेटी बनाओ, कमेटी बनाओ, इन्हें डाल दो सेफ डिपॉजिट बॉन्ड में, कोई निर्णय मत करो, ऐसा मत करिए। और मुझे विश्वास है कि जितने लोग मेरे सामने बैठे वो ऐसा कभी नहीं करते, वो ऐसे करने वाले नहीं है। मैं जरा बाकी लोगों के अनुभव की बात कर रहा हूँ। और इसलिए आने वाले समय में हम जो रोड बना रहे हैं, जो NH है वो भी बढ़ गया है। 91,287 किलोमीटर 2014 में था, अब 1,46,342 किलोमीटर हुआ है। 60% ग्रोथ हुई है। अभी मैंने कहा है कि 2 लेन पेव शोल्डर है, 10,000 PCOs के ऊपर ट्रैफिक होगा तो 4 लेन करेंगे, तो 25,000 किलोमीटर निकले हैं। लैंड भी अवेलेबल है, पर DPR बनाने में बहुत धीरे धीरे से काम चल रहा है। मैंने बोला अरे DPR को, DPR बनाने वाले तो बहुत ही महान है, ये पूरे सेक्टर को सबसे अड़चन में लाया तो ये DPR बनाने में लाया। हमारे यहाँ जो रोटेशन जिसका लोएस्ट आता है उसको DPR बनाने का मौका होता है। और मुझे हमारे अधिकारी कहते हैं कि यही फॉर्मूला है, दूसरा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा अगर आपको हार्ट का ऑपरेशन करना है तो टेंडर निकाल के क्यों नहीं जाते आप? उसी डॉक्टर के पास जाओ जिसका सस्ता होगा। तब आपको अच्छा हॉस्पिटल क्यों चाहिए? खाना खाना है तो आपको अच्छा रेस्टोरेंट क्यों नहीं चाहिए? आपको चाहिए। अगर आप खाना खाना है तो आपको अच्छा रेस्टोरेंट चाहिए। तब सस्ता मिल रहा है तो आप कहीं नहीं जाते। तो DPR बनाने में इतने घटिया DPR क्यों बनाने वाले के पास जाते हैं? अब हमने लोएस्ट वाली कंडीशन निकाल दी है। DPR हमारे प्रोजेक्ट का बैकबोन है। DPR परफेक्ट होना चाहिए और हमारे इंजीनियर्स ने लोअर लेवल पर DPR का परीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि इसमें क्या गलती है, जनता के लिए कौन सी समस्या है इसमें। और ये नहीं होगा तो इंजीनियरिंग कॉलेज और IIT जो है उनके लड़कों को और प्रोफेसर को कहिए कि हमारा DPR आप चेक करके दीजिए। हम DPR चेक नहीं करते, टेंडर लगा देते, फिर EOT और COS आता है, साल भर उस पर साइन नहीं करते, कॉन्ट्रैक्टर से काम कर लेते हैं, वो चक्कर काटते हुए थक जाता है, उसका वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाता है और फिर उसको कोई तो रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने कहा ये आपकी पूरी तो ऐसे कि होटल में जाते हो, सब कुछ खाते हो, निकलने के समय जो काउंटर पे जाते हो हंसते हो, तो बोलता है बिल दो, हंसते हुए निकल जाते हो। ऐसे कैसे होगा? अगर आप बोलते हो तो काम है तो काम के पैसे देने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं हमारे शासकीय प्रोसीजर में भी हमको बदल करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए, क्वालिटी कमिटमेंट भी चाहिए, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी चाहिए और फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। ये कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस ऐसा काम मत करिए। परफॉर्मेंस ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है कि अगर ये आप सब करोगे तो हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की गति और बढ़ेगी। हमारे सड़कों के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तेज हुआ है। रिमोट और ट्राइबल एरिया में रोड बन गए। मुझे इतना आश्चर्य होता है कि दिल्ली में एक द्वारका एक्सप्रेस हाईवे हमने बनाया। रोड हमारा NH का नहीं था, हरियाणा और दिल्ली सरकार का था
और जब रोड बन गया तो केवल 28 किलोमीटर रोड मुझे लगा कि 300-400 करोड़ में बनेगा, 8,000 करोड़ रुपए खर्चा हुए। दिल्ली के एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप के नीचे से टनल बनी और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि हमने 1 रोड बनाया तो दिल्ली और गुड़गांव के बीच में 5 लाख करोड़ रुपए रियल एस्टेट के डेवलपमेंट हुए। कितने युवाओं को रोजगार मिला होगा, कितना जीएसटी मिला होगा। रोड से प्रोग्रेस और डेवलपमेंट बहुत गतिशील बनती है और मुझे विश्वास है कि रोड अच्छे बनेंगे तो हमारे देश का आर्थिक विकास भी गति से होगा। अभी IIM बेंगलोर, IIT चेन्नई और IIT कानपुर ने एक रिपोर्ट दिया है। हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है, चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की लॉजिस्टिक कॉस्ट 12% है। और अभी जो रिपोर्ट मिला उन्होंने कहा है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 5% कम हुई है क्योंकि नए रोड बन गए। अभी इस महीने में हम प्रधानमंत्री से हमने रिक्वेस्ट की है दिल्ली देहरादून और कानपुर लखनऊ रोड का उद्घाटन करने के लिए।